So hello guys, my name is Ruturaj and welcome back to my channel. So our previous video was on metamorphic petrology, that is metamorphic phases concept we cleared, right? So today onwards my plan is something else. So I'm going to start Indian stratigraphy. So I know most of you thinks that this is one of the most difficult topic from our earth science syllabus, and I know, let me give you a simple task. Whoever thinks that this is stratigraphy and paleontology is difficult and most difficult, one of the most difficult from the several topics of our syllabus, I request you guys to put in the comment section that what exactly you think that this is difficult because of this problem we couldn't study that topic properly. Okay, means stratigraphy. So ये एग्जैक्ट बताने की कोशिश करो कि इसमें स्ट्रैटिग्राफी में क्या डिफिकल्ट लगता है आपको, या फॉर एग्जांपल पैलेंटोलॉजी में क्या डिफिकल्ट लगता है जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। और बस कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको आपको एकदम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। और इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस दैट ओनली, तो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू tackle with these type of topics in CSIR NET or GATE, any examination. Okay, most of you and whoever is preparing for the competitive exams like GSI, most of the people who are preparing for GSI examinations, like means UPSC examinations like GSI and junior geologist, any geological exams, they frequently tell me that this is the most difficult topic that we need to face while preparing for the examination. Okay, but this is the most easiest. I am telling you, this is very interesting topic. Okay, so let us start today's lecture, and this is the first lecture in Indian stratigraphy. We will start from the geological time scale. We will cover some basic ideas of stratigraphy, and then finally we will come to Indian stratigraphy. Okay, so this will be the series of lecture, not I can't finish it in 1 or 2 lectures. Okay, so in today's lecture we will just see what is stratigraphy and what you need to study and how you need to study stratigraphy. Okay, so don't forget that task what I told you. Okay, go in the comment section and tell me exactly what you find difficult in that, so that upcoming videos I can prepare according to that. Okay, so let's start. Stratigraphy. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको इस नाम से ही डर लगता है कि स्ट्रैटिग्राफी बोल के छोड़ देते, पढ़ना ही छोड़ देते हैं जियोलॉजी। ऐसा मत करो भाई, ठीक। आज का डेट क्या है? 21, राइट, 21/11/2022. Okay, so before starting I will request you, okay, इसको रिक्वेस्ट समझ लो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आपको नहीं पता है तो डोंट इवन ट्राई टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी बोथ. One more thing, when you study geological time scale, you need to consider your geological formations throughout the geological period. Simultaneously, you need to consider paleontological, means fossil record of the geological period. Okay, I think you all know about our geological time scale. You must have heard. Okay, जिनको पता नहीं है, सुना तो होगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसा कुछ होता है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आपको पता नहीं है तो पहले इसको रट लो, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट। मैं एक स्क्रीन पे अभी थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ, ये वाली टाइम स्केल आप रट लेना, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना इसमें। ये प्रोटेरोजोइक, आर्कियन वगैरह ये नेम पहले डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन एक बार अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके दिमाग में बैठ गई ना तो टाइम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रैटिग्राफी पढ़ सकते हैं बहुत इजीली।
ठीक है। तो स्ट्रैटिग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रैटा। यहां मैं बाद में आता हूं। व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी? स्टडी ऑफ स्ट्रैटा। अब स्ट्रैटा मतलब क्या है? एक रॉक यूनिट, ठीक है, एक बेड्स का एक फॉर्मेशन, जो ये बेड 1 है, ये बेड 2 है, बेड 3 है, और इनको बना के एक फॉर्मेशन बनता है। ये फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एज में आता है, ठीक है। तो इस एज को हमें रेफर करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, गो एंड स्टडी फॉर जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड देन कम टू योर स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी। Simultaneously you will have to study stratigraphy and paleontology because these two are interconnected with each other. Now the second important thing, first important thing is geological time scale. Without geological time scale, I'm seriously telling you, don't even try to study stratigraphy without the knowledge of your geological time scale. Okay, तो स्टडी ऑफ स्ट्राटा, स्टडी ऑफ स्ट्राटा मतलब सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर, यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर, ओके, हमारा अर्थ का एज है ये। अर्थ का फॉर्मेशन के बाद रिसेंट तक कौन सा जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है अर्थ के हिस्ट्री में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस as we are going to focus on Indian stratigraphy, you need to consider cratons, mobile belts and Proterozoic sedimentary basins, all these things with respect to Indian subcontinent or Indian plate we can say। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल ये है इवेंट्स हुए पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, ठीक है, तो उनको पढ़ना है बस। और एग्जाम के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है कि फॉर्मेशंस के कुछ नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा डेक्कन ट्रैप जो है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक इग्नियस प्रोविंस इन द वर्ल्ड वी कैन से, ओके। तो वो कब हुआ था? क्रिटेशियस में, ठीक है, एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। ये कहाँ आता है? मेसोजोइक पीरियड में, जहाँ डायनासोर्स वगैरह थे, ठीक है। उसके बाद मेटेओरिक इम्पैक्ट की वजह से वो डायनासोर्स वगैरह खत्म हो गए और उसके एंड में हमारा जो इंडियन प्लेट है उस पर डेक्कन ट्रैप का डिपोजिशन हुआ है, मतलब इरप्शन हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से डेक्कन ट्रैप बना है, ठीक है। तो ये हमने जो डेक्कन ट्रैप का एग्जाम्पल ले लिया है। डेक्कन ट्रैप कहाँ है इंडिया में? ये वाला पोर्शन डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका का कुछ पोर्शन, तो ये सब मिला के ये डेक्कन ट्रैप बनता है हमारा। डेक्कन ट्रैप कब फॉर्म हुआ था? क्रिटेशियस में। अब व्हाट इज क्रिटेशियस? क्रिटेशियस इज वन ऑफ द पीरियड्स ऑफ मेसोजोइक एरा। अब ये एरा क्या है, ये ईऑन क्या है, फिर पीरियड्स क्या है, फिर एपोक क्या है, ये सब आपको पता चलेगा जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट मैं बताना यही चाहता हूं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बिना आपको स्ट्रैटिग्राफी पढ़ना अलाउड ही नहीं है जियोलॉजी में, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पहले पढ़ो और फिर इधर आओ स्ट्रैटिग्राफी में। स्ट्रैटिग्राफी इज नॉट डिफिकल्ट। if you downloaded some previous year questions of some competitive examinations like NET, GATE or GSI or MPSC which is conducted by Maharashtra government, and suppose you are directly reading the questions related to stratigraphy from the question paper, you won't be able to understand a single sentence of it without the knowledge of this geological time scale, okay. So you need to study stratigraphy step by step, okay, according to the age. Means suppose now I have given you the example of Deccan Trap. Deccan Trap was formed in Cretaceous period. Cretaceous period means 65 million years ago. तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में डेक्कन ट्रैप का कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब रिकलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म्ड इन द क्रिटेशियस पीरियड. क्रिटेशियस पीरियड मींस अराउंड
अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ इट वॉज इरप्टेड। तो आपको इससे एक और चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप जब फॉर्म हुआ था तो इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है, इंडियन प्लेट कहाँ थी, मेडागास्कर के पास से गुजर रही थी, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से बना है हमारा डेक्कन ट्रैप। ये सब चीजें आपको इंटरकनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेट मूवमेंट वगैरह ये सब चीजें बता रहा हूँ, तो प्लीज गो एंड वॉच माई प्लेट टेक्टोनिक्स वीडियो, एंड बिफोर दैट यू नीड टू वॉच कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। So everything is interconnected in geology. So stratigraphy is not difficult. Again, I am telling you, and this geological time scale you can study in 1 or 2 hours, maximum 2 hours. It will not take more than 2 hours. मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ अभी कि ये जो है हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये है स्टार्टिंग से लेके प्रोटेरोजोइक के एंड तक, ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर्स पे हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था और इसका जो एज है वो 540 मिलियन ईयर्स है। मतलब आपका 4.6 से 0.5, यहाँ पे अगर बिलियन ईयर्स बोलना है हमें तो 0.5 बोल सकते हैं, 0.5 बिलियन ईयर्स, मतलब हमारा 90% जो एज है, ठीक है, रिसेंट, यहाँ पे अगर रिसेंट कंसिडर कर दे और यहाँ पे 4.6 पे अर्थ फॉर्म हुआ है, तो 90% जो हमारा एज है, एज जो है वो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में ही कवर हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको, और इसके ऊपर जो है वो याद रखने की ज़्यादा चीज़ें है, यहाँ पे याद रखने की नहीं है ज़्यादा चीज़ें। मतलब प्रोटेरोजोइक के अंडर आता है पैलियो प्रोटेरोजोइक, मेसो प्रोटेरोजोइक और नियो प्रोटेरोजोइक, हो गया इसका डिवीजन। मतलब 70-80% आपने कर दिया इधर ही, यहाँ पे बस 3 डिवीजन है आगे, बस हो गया यहाँ तक। और इसके पहले 0.5 बिलियन ईयर्स के पहले फॉसिल रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं है, 1-2 फॉसिल रिकॉर्ड्स है जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे जाके। और आर्कियन में आपका कुछ फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, और फॉसिल रिकॉर्ड जो भी है मतलब याद रखने के लिए, यहाँ पे बस 1-2 फॉसिल्स है, यहाँ पे एक फॉसिल है बस स्ट्रोमेटोलाइट बोल के, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था अर्थ पे, वो हिस्ट्री में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटिग्राफी पढ़ना है तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ टाइम, इट इज, वी कैन से इट इज अ टाइम पीरियड, मीन्स व्हाट आर द, वी हैव डिवाइडेड द टाइम पीरियड ऑफ थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। टाइम पीरियड को हमने ऐसा डिवाइड कर दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स पढ़ेंगे हम, जैसे डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस में इरप्ट हुआ था। अब अगर प्रोटेरोजोइक ले लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटेरोजोइक ले लिया, प्रोटेरोजोइक में क्या क्या जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी हमारे प्रोटेरोजोइक, हमारे इंडिया में, इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटेरोजोइक में हमारे पूरे बेसिन्स बने थे, ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन्स बोलते हैं हम उसको, एक मिनट, ठीक है, जिसको हम सेडिमेंट्री बेसिन्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, वो सब प्रोटेरोजोइक में फॉर्म हुआ था। मतलब फॉर एग्जांपल विंध्यन बेसिन, कलाडगी बेसिन, कलाडगी भीमा बोलते हैं उसको, ठीक है, जो डेक्कन, सॉरी, डेक्कन ट्रैप के नीचे है लेकिन धारवाड़ क्रेटोन के ऊपर है, क्योंकि धारवाड़ क्रेटोन इज अ पार्ट ऑफ आर्कियन। आर्कियन क्रेटॉन्स जो बने थे, सब क्रेटॉन्स वो इसमें बने थे, प्रोटेरोजोइक में बने थे सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया। बस यही याद रखना है आपका, यहां तक पूरा 70% जियोलॉजी हो गया है। अब बस थोड़ा बाकी का याद रखना है कि मेसोजोइक में जब जाएंगे तब डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स कब जाके एक्सटिंक्ट हो गए, क्रिटेशियस के एंड में। क्रिटेशियस के एंड में और कुछ हुआ था फॉसिल के अलावा, स्ट्रैटिग्राफी के हिसाब से वो हुआ था डेक्कन ट्रैप इरप्शन, डेक्कन ट्रैप लावा। सो डेक्कन ट्रैप बेसॉल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिटेशियस एज, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है स्ट्रैटिग्राफी में, बस कुछ है डिफिकल्ट।
तो आपको अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही ठीक से पता नहीं है तो स्ट्रैटिग्राफी में आके मतलब फायदा ही क्या है। आप पहले जाके ये पढ़ो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ना कैसे, सपोज मान लो कि हम प्रोटेरोजोइक पीरियड पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। प्रोटेरोजोइक में ड्यूरिंग दिस प्रोटेरोजोइक पीरियड व्हाट वाज द जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट वाज दैट वाज हैपेंड इन द अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें पता है जियोलॉजिकल इवेंट क्या हुआ था, सेडिमेंट्री बेसिन्स फॉर्म हुए थे। सेडिमेंट्री बेसिन्स इज अ जियोलॉजिकल पीरियड, सॉरी जियोलॉजिकल इवेंट, ठीक है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट geological event which was happened during the Archean period? Craton formation. Cratons are oldest platform we consider, okay, oldest rocks if we expect from any geological age which is Archean age. Archean age के क्रेटॉन्स में ही हमें ओल्डेस्ट रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट क्रस्ट वहाँ पे प्रिजर्व हुआ है। ये सब चीज़ें आएंगी बाद में, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ बस कि स्ट्रैटिग्राफी पढ़ना कैसे। तो सपोज हमने प्रोटेरोजोइक ले लिया। प्रोटेरोजोइक में व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल इवेंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, दैट इज विंध्यन, कडप्पा, देन कलाडगी भीमा बेसिन, ओके। देयर आर मेनी बेसिन्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बेसिन्स, विंध्यन एंड ऑल, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। 3-4 बेसिन्स है, उसके फॉर्मेशंस याद रखने हैं बस कुछ, और फॉर्मेशंस कैसे याद रखने हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अभी प्रोटेरोजोइक एज में व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट, उसके बाद उसी टाइम पढ़ना है आपको व्हाट वाज द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ प्रोटेरोजोइक पीरियड। तो आपको स्ट्रैटिग्राफी याद रहेगी, उसके आगे ही आपको लिखना है कि फॉसिल क्या था उस टाइम, इंपॉर्टेंट लाइफ क्या थी उस टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे पढ़ना है साइमल्टेनियसली। यू विल हैव टू स्टडी स्ट्रैटिग्राफी एंड अलोंग विद द पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी में इतना ज़्यादा है नहीं कुछ, ठीक है। पैलेंटोलॉजी में थोड़े नाम डिफिकल्ट लगते हैं, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि ये नाम, बस नाम याद रखना ही इसमें चैलेंजिंग है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाती है। और बिफोर स्टार्टिंग पैलेंटोलॉजी you must watch my earlier video on paleontology. I have covered all the basic things of paleontology there. Okay, what is fossil, then what are the different types of fossils, everything I have covered in that video. I will give the link in the description box also. Okay, so these are some things, means this is how you start preparing for your stratigraphy and paleontology, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से कुछ चीज़ें देखते हैं अभी इसी लेक्चर में। इंडियन प्लेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, बिकॉज लेटर ऑन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी, राइट, दैट इज वाई वी आर हियर टू, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन फॉर जनरल स्ट्रैटिग्राफी ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ वी कैन से। नाउ we will see some important things about India, Indian plate. You need to understand 3 things, okay. Whenever you start preparing for the stratigraphy, you divide it in 3 means stratigraphy wise, okay. We are not going to consider paleontology here now, right now, okay. Whenever you start preparing for stratigraphy, Indian stratigraphy, you divide it in 3 different things, okay. One is craton, second mobile belts, third is sedimentary basins. Okay, now what are the cratons? Cratons are the oldest rocks which are preserved of our earth's crust, okay, which was not remelted after formation.
फॉर्मेशन के बाद उनका मेल्टिंग नहीं हुआ है, उनका सबडक्शन नहीं हुआ है, वो प्रिजर्व हुआ है, ठीक है, उसको क्रेटॉन्स बोलते हैं। तो ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ वी एक्सपेक्ट इन क्रेटॉन रीजन, क्रेटोनिक रीजन। ओके, सो व्हाट आर द विच आर द मेन क्रेटॉन्स ऑफ इंडिया? फर्स्ट इज धारवाड़ क्रेटॉन, सेकेंड सिंहभूम, third important cratons I am writing here, okay? Third is Bastar craton, okay? Fourth, what are okay, Dharwar, Singhbhum, Bastar and Aravalli craton, okay? Now अगर आप स्ट्रैटिग्राफी पढ़ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टारगेट कर रहे हैं स्ट्रैटिग्राफी में, तो ये 4 क्रेटॉन्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। ये 4 अगर क्रेटॉन्स आपने सही से पढ़ लिए तो आपका स्ट्रैटिग्राफी का आई थिंक मोर देन 40% सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें 4 क्रेटॉन्स में। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्रेटॉन्स ऑफ इंडिया। और किस एज में हुआ था ये? आर्कियन में, सब आर्कियन में। क्रेटॉन्स बोले तो आर्कियन में जाना है, ठीक है। मोबाइल बेल्ट्स मतलब मान लो कि ये क्रेटॉन है, ये पता है हमें कि स्टेबल शील्ड है, शील्ड एरिया बोलते हैं हम इसको। 2 क्रेटॉन्स हैं, ये मान लो कि धारवाड़ है, ये सिंहभूम है, मान लो, ठीक है। ये सिंहभूम यहाँ नहीं है, धारवाड़ यहाँ है, तो सिंहभूम यहाँ आएगा इधर उधर, ठीक है। तो ये 2 क्रेटॉन्स अगर टकरा गए एक बीच में तो एक बेल्ट बनाएंगे, यहाँ पे एक रॉक का बेल्ट बनेगा, उसको बोलते हैं हम मोबाइल बेल्ट। उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? दोज आर एक्टिव मोबाइल बेल्ट्स, एक्टिव, ठीक है। मतलब ये 2 क्रेटॉन टकराने से वो ऊपर आ रहे हैं। जैसे हमारा हिमालय फॉर्मेशन हुआ था, हिमालय फॉर्मेशन कैसे हुआ है? आफ्टर कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड चाइना प्लेट, ठीक है। तो चाइना और इंडियन प्लेट टकराने के बाद वहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे टेथिस सी में वो ऊपर आ गए, तो वो एक्टिव माउंटेन है ना। अभी भी बोलते हैं कि हिमालय का हाइट जो है वो राइज कर रहा है, तो सो दिस इज एक्टिव माउंटेन, सो दिस इज आवर मोबाइल बेल्ट, ओके। मोबाइल बेल्ट्स का जो एज है वो दोनों में बोल सकते हैं, आर्कियन प्लस प्रोटेरोजोइक में आता है वो, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेडिमेंट्री बेसिन्स। सेडिमेंट्री बेसिन्स आता है प्रोटेरोजोइक में, ठीक है। ये एजेस याद रखना बस। ये है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो टू 4, this is 4.0, okay. Now Proterozoic starts at 2.5. This is in billion years, okay, and ends at 0.5. All the ages are in billion years. 4.6 to 4 is Hadean, okay. Hadean में fossils भी नहीं है और rock record भी नहीं है, कोई भी rock नहीं है। After 4.0 up to 2.5 billion years ago, this is Archean period. आर्कियन में हमारे सब क्रेटॉन्स आते हैं, धारवाड़, सिंहभूम, बस्तर, अरावली, और भी कुछ छोटे छोटे क्रेटॉन्स हैं, लेकिन ये मेन क्रेटॉन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आते हैं आर्कियन में। आफ्टर दैट 2.5 बिलियन ईयर्स एगो अप टू 0.5 बिलियन ईयर्स एगो, इसमें क्या आते हैं? सेडिमेंट्री बेसिन्स आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स उसके बाद फॉर्म हुए थे। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग रॉक का होना जरूरी है ना, उसके बाद वेदरिंग इरोजन होकर बेसिन में डिपॉजिट करेगा, फिर रॉक बनेगा। तो इसकी वजह से प्रोटेरोजोइक में ये सब रॉक जो थे उसका वेदरिंग इरोजन करके प्रोटेरोजोइक में सेडिमेंट्री बेसिन्स बना दिए, ठीक है। और सेडिमेंट्री बेसिन्स में इंपॉर्टेंट बेसिन्स कौन से हैं इंडिया के? विंध्यन इज ए यंगेस्ट वन, ठीक है। अगर सेडिमेंट्री बेसिन्स प्रोटेरोजोइक के अगर लिखेंगे तो यहां पे आएगा विंध्यन, सबसे यंगेस्ट है वो। उसके बाद कडप्पा बेसिन, भीमा, कलाडगी, ये कर्नाटका में है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट में मतलब चेन्नई साइड में आता है। ये विंध्यन जो है वो यूपी
दिल्ली एरिया नॉर्थ में आता है, ठीक है। इसमें हमें डायमंड्स मिलते हैं, पता है ना। विंध्यन बेसिन में पन्ना जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशंस में हम बाद में जाएंगे। अब ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री बेसिन्स कौन कौन से हैं और उनका एज क्या होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री बेसिन्स वी नीड टू स्टडी अंडर द प्रोटेरोजोइक एज, दैट इज 2.5 बिलियन ईयर्स एगो टू 0.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसके बीच में सेडिमेंट्री बेसिन्स है हमारे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे अभी। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ यू नीड टू स्टडी, हाउ यू नीड टू फोकस ऑन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी और स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी कुछ डाउट हो कि कैसे स्टार्ट करें पढ़ना, तो स्टार्ट तो मैंने बताया कि यू फर्स्ट स्टार्ट विथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। विदाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल it is not possible, seriously it is not possible to study Indian stratigraphy or stratigraphy, because you need to consider, you have to consider ages along with the formation studies, all this, ठीक है। अभी इसके बाद फिर गोंडवाना कोल वगैरह आएगा, फिर उसके बाद आएगा मेसोजोइक, फिर डेक्कन ट्रैप आएगा, ठीक है। फिर यंगेस्ट में हमारा हिमालय आएगा, ठीक है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको याद रहेंगे सब फॉर्मेशंस जो है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। स्ट्रैटिग्राफी में देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ अप टू 0.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतना ही बताया मैंने अभी, ठीक है। ये सब इतना बताया, और कुछ बुक्स रेफर करना है आपको इसमें स्ट्रैटिग्राफी के लिए, तो जीएसआई का जियोलॉजी ऑफ इंडिया, जियोलॉजी ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में दिया है ये पार्ट सब, ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो टू 0.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 टू 0.5 बिलियन ईयर्स, मतलब एंड ऑफ प्रोटेरोजोइक तक जितना भी फॉर्मेशन है इंडिया के, वो दिया है वॉल्यूम 1 में। 2 वॉल्यूम्स है छोटे, मतलब 2 किताबें हैं, ब्लू कलर के ये है वो, ठीक है। किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपको, किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपको दोनों मिल जाएंगे। और वॉल्यूम 2 में दिया है 0.5 बिलियन ईयर्स से रिसेंट तक, मतलब हिमालय फॉर्मेशन तक सब दिया है उसमें, ठीक है। ऐसे 2 सेपरेट वॉल्यूम उन्होंने डिवाइड कर दिए, तो उसको बोलते हैं, यहां पे हमारा आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इज अ पीरियड। कैम्ब्रियन के पहले जो है वो वॉल्यूम 1 में दिए, और उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा उसको पोस्ट कैम्ब्रियन बोलते हैं। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट स्टडिंग स्ट्रैटिग्राफी, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिलेट स्ट्रैटिग्राफी विथ योर पैलिएंटोलॉजी, okay, what are the important things you need to focus from paleontology and stratigraphy also. So simultaneously we will go step by step, but before that I would like to request you please put in the comment section what part of stratigraphy and what part of paleontology you find it difficult to tackle for exam. So stay connected and please do subscribe if you are not subscriber of GeoValley, and yeah, please you can give me suggestions also what type of videos I should provide you, so that it will help you for your examinations, okay, any examination, your semester examination, your competitive exams, okay. So that's it for today, and stay connected. Bye bye.